Now I just mute everyone because some noise is there. So if you have any doubts, just raise the hand. I will give you permission to unmute yourself. If you. Yes, sir. Yes. So basically we have to discuss the paper name is Introduction to Computer Architecture. Here the term Introduction to Computer Architecture. Before discussion of the architecture of the computer, we must go through the word organization, and then we discuss the architecture. Now this is the true terminology. Organization is the name of body. It is the name of body under which several architecture works. It's just like a house in which several rooms are there. So when we discuss the architecture, we are discussing the internal view of the particular organization. तो किसी भी organization को हम एक body मानते हैं और उस body के अंदर जो various डिजाइन वर्क आर्किटेक्चर, उसको आर्किटेक्चर बोलते हैं. तो इसलिए एग्जांपल अगर हाउस का लेते हैं, तो अगर हाउस आपका, इफ योर हाउस कंसिस्ट ऑफ 2 bedroom 3 bedroom, so that is the internal architecture. यानी कि that organization contains certain architecture on the basis of which the internal design is accomplished. तो internal design और view के लिए हम उस architecture की बात करते हैं. तो here the name of the organization is CPU. ठीक है ना? So we just discuss the CPU as an organization under which microprocessor works. ठीक है ना? तो microprocessor to microprocessor, your architecture is varied. चलो, आप i3, i5, i7, ठीक है ना, ये अलग अलग माइक्रो प्रोसेसर नाम सुनते हैं. तो दीज आर द माइक्रो प्रोसेसर जस्ट चलो कंटेन सर्टेन आर्किटेक्चर. ये सर्टेन आर्किटेक्चर फॉलो करता है. दैट मीन्स दैट आर्किटेक्चर कंसिस्ट ऑफ रजिस्टर्स, ALU सेट, CU. ठीक है ना. इफ यू हैव डुअल कोर माइक्रो प्रोसेसर, देन योर CPU, यानी आपका जो ऑर्गेनाइजेशन कंटेन्स मोर देन 1 CPU, एक से अधिक CPU होगा. तो जो एक CPU ऑर्गेनाइजेशन के लिए हम लोग बात करेंगे, वही सेवरल CPU के लिए काम करेगा. नाउ ऑक्टा कोर, डुअल कोर, ठीक है ना. तो ये 8 CPUs, 4 CPUs, ठीक है ना, 2 CPUs आर देयर. तो ऑर्गेनाइजेशन कंसिस्ट सर्टेन आर्किटेक्चर, और जो आपका आर्किटेक्चर है तो उस आर्किटेक्चर को हम लोग डिस्कस करेंगे. तो बेसिकली वी हैव टू डिस्कस अंडर योर सिलेबस, वी हैव टू डिस्कस अबाउट इंटेल 8086 architecture. Now what is 8086? Nowadays whatever microprocessor you have for generated by Intel, like i3, i5 and various generation of that microprocessor, all are the part of this family. In 8086 is the name of family under which several microprocessor is designed and invented. So i3, i5, Celeron, Pentium 1, 2, 3, 4, 5, 80, 486, 386, 286, these are the name of the microprocessor. ये सब मॉडल का नाम है जो माइक्रोप्रोसेसर आपका जो है इंटेल ने बनाया. Now Intel is the name of the body organization which is known by the microprocessor डिजाइन कंपनी. यानी माइक्रोप्रोसेसर डिजाइन करने के लिए ये आपका फेमस है. और सबसे ज्यादा अगर कोई प्रोसेसर यूज करता है तो इंटेल का. जैसे आप सबसे ज्यादा अगर कोई ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं तो विंडोज का. इट डजंट मैटर वेदर यू परचेज द OS और विदाउट परचेजिंग यू आर यूजिंग द क्रैक वर्जन ऑफ द OS, दैट इज नो इशू, बट स्टिल यू आर यूजिंग विंडोज
and that Windows is popular than other any operating system. In the same manner, you are using MS Office, MS Word, Excel, PowerPoint. So your MS Office package is popular one. So in MS Office, in Word, Excel, PowerPoint, you are favoring the MS Office. In operating system, you are favoring the Windows. In the same manner, microprocessor point of view से अगर आप देखते हैं तो you just favor the Intel generated microprocessor. क्योंकि इंटेल को आप ज्यादा, क्योंकि यहाँ पर C2C अगेन C2C रिलेशनशिप, कस्टमर टू कस्टमर, तो आप अगर माइक्रो प्रोसेसर यूज कर रहे हैं इंटेल का तो यू जस्ट फेवर इट, गिव प्रॉपर फीडबैक, गुड फीडबैक टू एनी अदर यूजर. तो कोई आपसे अगर पूरे फीडबैक लेना चाहेगा तो आप ये बताएंगे इंटेल का प्रोसेसर आप ले सकते हैं, ठीक है ना. तो यस यस सेवरल कंपनीज आर देयर. तो योर लिनक्स इज आल्सो गुड. लिनक्स इज फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर. POS. A lot of company generated the microprocessor, but I am just giving the example that Linux is also free open source software. Still you are not using client version of Linux because it is not user friendly. It is eco friendly. ठीक है ना. ये आपका इकोनॉमिकल है. There is no charge for, you have to pay for that particular software. Free open source software है, POS है. Still you are not favored the particular OS. कंपेयर करना हो तो विंडोज को आप ज्यादा फेवर करते हैं, आप लिनक्स को कम फेवर करते हैं. तो इसलिए क्योंकि वो यूजर फ्रेंडली है, इको फ्रेंडली हो चाहे नहीं, लेकिन यूजर फ्रेंडली है. हाँ, इजी टू यूज है, इजी टू एक्सेस है, ठीक है ना. इकोनॉमिकल नहीं है. इकोनॉमिकल हम लोग सिचुएशन ओरिएंटेड बनाते हैं, बट इट इज नॉट इकोनॉमिकल. जब क्लाउड वर्जन में आप काम करेंगे, अभी जैसे आपका इलेक्ट्रिसिटी प्रीपेड हो गया, तो अब ये क्या है, एक तरह से व्हाट यू पे व्हाट यू गेट. जितना पे करेंगे वही, जितना फ्यूल आप रिफिल कराते हैं अपने बाइक में, वो फ्यूल जब तक आपका अवेलेबल रहता है तब तक बाइक मूव करता है. जैसे ही फ्यूल खत्म हुआ तो रिचार्ज कराने की जरूरत है. तुरंत ऑटोमेटिक आपका बाइक जो है वो पेट्रोल पंप पर चला जाता है, और नहीं जाएगा तो डेडलॉक हो सकता है. यानी कि रास्ता में कहीं, तो आप क्या करते हैं, जैसे ही आपका रिजर्व जाता है तो कुछ किलोमीटर के बाद आप पेट्रोल पंप खोजने लगते हैं कि क्यों जस्ट फॉर सिक्योर ड्राइव. सिक्योर नॉट इन द मैनर कि आप कहीं एक्सीडेंट कर जाए ना. सिक्योर का मतलब कहीं आप इंटीरियर, कहीं दूर दराज, कहीं पर आपको जहां पर फ्यूल कंबशन रिफिलिंग नहीं हो, आपकी गाड़ी बंद हो जाए, तो दैट इज द डेडलॉक सिचुएशन. तो जस्ट टू ओवरकम और अवॉइड दैट सिचुएशन, यू जस्ट इंश्योर द पर्टिकुलर फ्यूल रिफिलिंग. तो ये सेम ऑपरेशंस आप यहाँ पर भी करेंगे. तो इंटेल 8086 आर्किटेक्चर जो हम लोग डिस्कस करेंगे ओवरऑल, तो हर माइक्रो प्रोसेसर को जब हम लोग डिस्कस करते हैं तो उसका एक रजिस्टर सेट होता है. यानी कि हर माइक्रो प्रोसेसर का एक रजिस्टर सेट होता है, एड्रेसिंग मोड्स होता है, ठीक है ना. तो 8086 फैमिली के भी जितने भी माइक्रो प्रोसेसर आए उसके भी रजिस्टर सेट थे, क्योंकि रजिस्टर का जरूरत होता है डेटा, एड्रेस, कंट्रोल, ये सब को टेम्पोररी रखने के लिए. जैसे आप कोई फाइल को ओपन किए तो आपका फाइल कहीं ना कहीं टेम्पोररी आपका एड्रेस होल्ड कर रहा होगा. जैसे MS वर्ड का कोई फाइल आपने ओपन किया, तो अब ये MS वर्ड का फाइल तब तक आपका जो है रजिस्टर होल्ड करेगा इसका एड्रेस, जब तक कि आप इसको क्लोज नहीं कर देते हैं. तो क्लोज करने के बाद ये डीएक्टिवेट होता है. अब यहाँ क्या है, 8086 फैमिली में जितने भी माइक्रो प्रोसेसर आए, we have to discuss the family of Intel microprocessor. ठीक है ना सर. हाँ बोलिए. घर वाला एग्जांपल दिया बिल्कुल. कंप्यूटर में आप जब हायरार्की देखते हैं, ठीक है ना, आ जाएंगे हम लोग धीरे धीरे. तो यहाँ पर ये जो आपका हायरार्की है पिरामिड टाइप, यहाँ सबसे पहले आपका प्रोसेसर रजिस्टर होता है. सबसे पहले कहने का मतलब कि इफ दिस इज द CPU, तो क्लोजेस्ट मेमोरी जो सेल है वो प्रोसेसर रजिस्टर है, सबसे क्लोजेस्ट मेमोरी सेल. इसके बाद आपका कैश मेमोरी होता है, ठीक है. इसके बाद आपका प्राइमरी मेमोरी,
और सबसे नीचे होता है सेकेंडरी मेमोरी। अब देखिए यहाँ दो फैक्टर आपका काम करता है, एक स्टोरेज कैपेसिटी फैक्टर, स्टोरेज कैपेसिटी, और दूसरा होता है स्पीड। तो जैसे जैसे आप सीपीयू से दूर जाते हैं, यानी जो जैसे मतलब मेमोरी दूर जाता है, वैसे वैसे आपका स्टोरेज कैपेसिटी इनहांस होता है या डिक्रीज करता है? इंक्रीज करता है। स्टोरेज कैपेसिटी इंक्रीज करता है, डिक्रीज क्या करता है? स्पीड डिक्रीज करता है। और जस्ट इसका उल्टा कर लीजिए, जब ऊपर की तरफ जाएंगे तो स्टोरेज कैपेसिटी कम होता जाता है और स्पीड बढ़ता जाता है। जैसे अभी आप इस क्लासरूम में बैठे हैं, तो इस क्लासरूम में अगर हम कोई भी इंफॉर्मेशन आपको देंगे तो यू कैन इजीली रिकॉग्नाइज एंड फास्टली रिकॉग्नाइज। इस क्लासरूम से बाहर कोई होगा तो उसको किसी भी तरह का इंफॉर्मेशन देने के लिए आप बाहर किसी को आपको जाना पड़ेगा, ठीक है? बाहर का मतलब ऑनलाइन से भी है। अब ऑनलाइन में जो है, अगर नेटवर्क बैंडविड्थ किसी तरह का प्रॉब्लम होगा तो उस केस में हो सकता है कि वो डिटैच हो जाए, लेकिन आप कनेक्टेड होंगे क्योंकि उनके साथ बहुत सारा फैक्टर लगा हुआ है, नेटवर्क, स्पीड, प्रोसेसर, बहुत सारा फैक्टर है। कहीं पर भी इनएडिक्वेसी होगा, इनकम्प्लीटनेस होगा तो वो डिसकनेक्टेड हो जाएंगे। तो आपका सीपीयू से सबसे क्लोजेस्ट जो मेमोरी है, इंटरनल मेमोरी, वो सीपीयू को फास्ट रिकॉग्नाइज करता है। उसके बाद कैश मेमोरी है, फिर प्राइमरी मेमोरी है, और सबसे लास्ट में सेकेंडरी मेमोरी है जिसको आप बोल सकते हैं हार्ड डिस्क। तो इन सारे मेमोरी में दो क्राइटेरिया में इसको डिवाइड कर दिया गया, एक वर्किंग और एक नॉन वर्किंग। तो वर्किंग मोड क्या होगा आपका? वर्किंग में ये प्राइमरी, कैश, प्रोसेसर, ये सब वर्किंग मोड में है। नॉन वर्किंग मोड में केवल एक ही है, हाँ, ये केवल आपका मेमोरी और परमानेंटली हाँ रिसाइडिंग प्रोग्राम। ये आपका मेमोरी, जो सेकेंडरी मेमोरी जिसको आप हार्ड डिस्क बोलते हैं, वो परमानेंटली प्रोग्राम को रिसाइड करने के लिए यूज होता है। क्यों? क्योंकि जो परमानेंटली रिसाइड होगा डेटा, उसी को आप यूज कर सकते हैं। हमको लगता है इसमें बहुत सारे लोग ब्रिज कहीं हैं, हाँ ऑल, हाँ, तो उसमें हम लोग ऑलरेडी ये प्रोग्राम एंड प्रोसेस डिस्कस किए थे, ठीक है ना? अच्छा, ठीक है। ब्रिज 2 हम शायद डिस्कस किए थे। तो प्रोग्राम एंड प्रोसेस एक्चुअली नॉन वर्किंग, बता रहा देखो साइज में, देखो पिरामिड में साइज देखोगे तो उसमें देखो साइज तुम्हारा जैसे जैसे नीचे की तरफ साइज बढ़ा है। यानी अगर 1 TB हार्ड डिस्क आप यूज कर रहे हैं तो प्राइमरी मेमोरी कितना यूज करते हैं? मैक्सिमम 8 GB। प्राइमरी मेमोरी, कैश मेमोरी, ऑल आर रैम। कैश मेमोरी इज द स्टैटिक रैम एंड योर प्राइमरी मेमोरी इज द डायनेमिक। हाँ, उसका साइज कम होता है, कैपेसिटी उसमें, इसलिए क्योंकि वो यूज क्यों किया गया वो बताते हैं अभी, पहले एक एक करके। स्टोरेज कैपेसिटी इसलिए बढ़ता है क्योंकि आपका सीपीयू से जो क्लोज होता है उसमें रजिस्टर के साथ साथ और भी कंपोनेंट अवेलेबल होता है। तो इस सीपीयू का जो है साइज कम होता है, तो उसमें रजिस्टर का भी साइज उसी के हिसाब से एलोकेट किया जाता है। जैसे जैसे सीपीयू से बाहर, यानी कैश मेमोरी का स्पीड, इसका साइज थोड़ा ज्यादा होता है, इसमें ज्यादा डेटा आप रख सकते हैं। प्राइमरी मेमोरी में उससे ज्यादा रख सकते हैं, और सबसे ज्यादा अगर डेटा रखना है तो सेकेंडरी मेमोरी रख सकते हैं। अब वो सेकेंडरी मेमोरी आपका इंटरनल भी हो सकता है, एक्सटर्नल भी हो सकता है। आप एक्सटर्नल हार्ड डिस्क भी रख सकते हैं, 1 TB 2 TB, जिसको आपको कभी कभी यूज करना है प्रोग्राम को, तो उसमें रख के वहां से भी एक्सेस कर सकते हैं, फाइल को ओपन कर सकते हैं। फाइल को सारे को आप सिस्टम में इंटरनल हार्ड डिस्क में रखें, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो फैक्टर आपका स्टोरेज कैपेसिटी और स्पीड, ये दो प्राइम फैक्टर है।
स्पीड क्यों बढ़ता है? जैसे जैसे सीपीयू से दूरी बढ़ती है स्पीड घट जाता है, इसलिए कि रिस्पांस घट जाता है। जैसे अभी हम कोई बात बोलेंगे तो रिस्पांस आपका फास्ट होगा, लेकिन यही बात हम बोल रहे हैं कोई बाहर में खड़ा है उसको सुनाई नहीं दे रहा है, तो पहले दरवाजा खोलना होगा या किसी को जाकर बोलना पड़ेगा। इस बिल्डिंग से कोई बाहर होगा तो इस बिल्डिंग से बाहर निकल के जाके बोलना पड़ेगा, इट विल टेक सम टाइम, तो रिस्पांस टाइम बढ़ गया ना। तो ये सीपीयू के साथ जो मेमोरी है, प्रोसेसर रजिस्टर इज ऑल्सो मेमोरी, it is also memory cell which is used to permanently not temporarily reciting the process or the instructions। तो instructions और process को temporary recite करने के लिए हमारे पास रजिस्टर है, परमानेंटली रिसाइट करने के लिए सेकेंडरी मेमोरी हार्ड डिस्क है। नॉन वर्किंग इसलिए कहा गया क्योंकि इसका काम, आप बैग लेके चल रहे हैं, आपके बैग का काम इतना ही है कि बस प्रोग्राम को लेके चले, ठीक है ना, ये नॉन वर्किंग है। वर्किंग क्या है? जब आपको बोला जाएगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम का बुक बाहर निकालो, तो ये वर्किंग मोड में। अब ये ऑपरेटिंग सिस्टम का बुक कौन निकालेगा? आप निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? कंट्रोल सिग्नल जनरेट हुआ। कैसे कंट्रोल सिग्नल जनरेट हुआ? रिक्वेस्ट सबमिट हुआ। आप एमएस वर्ड का कोई फाइल ओपन करेंगे, आप रिक्वेस्ट देंगे पहले, जैसे हम यहाँ पर कोई इस पर्टिकुलर पॉइंट पर क्लिक करेंगे तो ये आएगा, इस पर्टिकुलर पॉइंट पर क्लिक करेंगे तो पेन आएगा। तो इसका मतलब है कि हम रिक्वेस्ट देते हैं ओएस को, उस रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंगली सीपीयू कंट्रोल सिग्नल जनरेट करता है। उसके बाद हम लोग एक और टर्मिनोलॉजी पढ़े थे, ये आपका क्या है? प्रोग्राम क्या है? हाँ, नहीं, प्रोग्राम क्या है? पैसिव एंटिटी, इसलिए भी इसको नॉन वर्किंग बोला जाता है। प्रोग्राम इज रिसाइडिंग इन सेकेंडरी मेमोरी, तो ये पैसिव एंटिटी है। और ये आपका, हाँ बता रहे हैं, एक्टिव एंटिटी। एंटिटी का मतलब क्या है? एंटिटी यहाँ पर सेट ऑफ आपका इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना। आप अगर डेटाबेस लैंग्वेज में जाइएगा तो एंटिटी एक टेबल को रिप्रेजेंट करता है। जैसे स्टूडेंट एंटिटी, तो स्टूडेंट एंटिटी हुआ तो उसका एट्रीब्यूट्स क्या होगा? स्टूडेंट का आईडी, उसका नाम, उसका कोर्स, उस किस यूनिवर्सिटी से रिलेटेड है, ठीक है ना, उसके फादर्स का क्या नाम है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, मदर्स का क्या नाम है, दीज आर द एट्रीब्यूट्स रिलेटेड टू दैट स्टूडेंट एंटिटी। तो यहाँ पर एक्टिव का मतलब कि जो एक्चुअल में वर्क करेगा, पैसिव का मतलब जो केवल डेटा इंस्ट्रक्शंस होल्ड करके रखेगा, ठीक है ना। अभी आपको एक शेड्यूल लगाया गया, आपके पोस्ट किया गया, आपको मैंने एक शेड्यूल डाला अभी 3-5 से, तो वो 3-5 से शेड्यूल क्या था? वो पैसिव एंटिटी था, वो एक प्रोग्राम आपको मिला। लेकिन जैसे ही हमने आपका ये क्लास एलोकेट हुआ 3-5 या 3-8-10 जब भी, तो वो आपका जो शेड्यूल था वो प्रोसेस रनिंग फेज में आ गया, ठीक है ना, तो रनिंग इन एग्जीक्यूशन फेज में आ गया। तो जितने भी चीज आपके हार्ड डिस्क में हैं वो जब रहेंगे तभी प्रोसेस बनेगा। यानी बैग में अगर कोई कंटेंट आप रखे होंगे तभी बैग से बाहर निकलेगा। ऐसा कभी हुआ है कि आप बैग में 5 कॉपी रखे हैं, निकालने समय 6 कॉपी हो गया? तो 5 है तो उसी 5 में से कोई कॉपी आप निकाल सकते हैं। हाँ, अगर एडअप करना है प्रोग्राम तो एक कॉपी और रख सकते हैं उसमें। तो उसी तरह से जैसे आप प्रोग्राम इंस्टॉल कर सकते हैं नया, पहले से जो प्रोग्राम है, अगर आपको आज टैली यूज करना है तो टैली इंस्टॉल कर सकते हैं, तो वो नया नोटबुक आपने रख दिया हार्ड डिस्क में। अब वो टैली या कोई भी पर्टिकुलर एप्लीकेशन आप जब रखेंगे तभी आप उसको एक्सेस कर पाएंगे। तो एक्सेशन करने के लिए क्या करना होगा? इंस्टॉलेशन करना होगा। इसका मतलब क्या है कि कोई भी प्रोसेस जो रनिंग प्रोग्राम है, वो प्रोसेस उसी का जनरेट होता है जो प्रोग्राम आपके सिस्टम में अवेलेबल है। तो प्रोसेस इज जनरेटेड फॉर दैट program only which is available to the computer। अब वो कहाँ अवेलेबल होगा आपको भी पता है, हार्ड डिस्क में होगा। आप जब इंस्टॉल करते हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम रिसाइड करता है परमानेंटली हार्ड डिस्क में ही। तो अगर प्रोसेस जनरेट होना है तो उसी का होना है जो प्रोग्राम है। अब ऐसा, इसको ऐसे समझते हैं, सर क्लास में है, AQ का भेज दिए, PQ का। तो
इसलिए अब जैसे आपको शेड्यूल डाला गया, बहुत सारा पेपर का शेड्यूल डाला गया होगा आज के डेट में, तो 3-4 शेड्यूल होगा। अब वो 3-4 शेड्यूल आपका प्रोसेस इंस्टॉल हो गया, ऐसा कभी नहीं होगा कि उसमें 5वां नंबर बिना शेड्यूल में अपडेट किया जाए, या 4 घंटा का आपका शेड्यूल दिया गया, आपको 6 घंटा 7 घंटा कुछ हो जाए, ऐसा नहीं होगा। ये जब भी होगा तो शेड्यूल में भी हमको अपडेट करना पड़ेगा, यानी इंक्लूजन ऑफ प्रोग्राम ओवर देयर। So here also, whenever you want to use or access any another application which is not available with your computer system, then you have to install that program before accessing. That means time to time, as per requirement, you have to install new program as per your usage. तो जैसा आपको यूज करना है उसके हिसाब से आप नया प्रोग्राम वहां पर इंस्टॉल करते रहेंगे। ऐसा नहीं है कि वन टाइम आपने सिस्टम परचेज किया, जो प्रोग्राम रख लिया, फ्यूचर में कभी दूसरा प्रोग्राम आपको यूज नहीं करना पड़े। आपको करना पड़ सकता है, टेक्नोलॉजी इनहांस होता है, तो जब टेक्नोलॉजी इनहांस होगा तो यू हैव टू आल्सो इनहांस योरसेल्फ। तो व्हेनेवर यू हैव टू इनहांस योरसेल्फ, then only you have to think about the new application which is needed to be enhanced। आपको जिसकी आवश्यकता है अभी आपने पढ़ा नहीं 3 साल में, तो जब आप कंपनी में काम करने जाएंगे और कुछ आपको इनहांसमेंट मिलेगा तो कंपनी का तो सिस्टम आपको अवेलेबल होगा, तो उसमें इनहांसमेंट होगा। अगर आप पर्सनल सिस्टम रखना चाहें तो उसमें आपको एडप्ट करना पड़ेगा, कोई टेक्नोलॉजी सीखना चाहे तो सीखना पड़ेगा। तो यहाँ पर भी वही चीज है कि प्रोसेस उसी का जनरेट होगा जो प्रोग्राम आपका अवेलेबल होगा। जो प्रोग्राम अवेलेबल नहीं होगा उसका प्रोसेस मींस, आप अगर बीसीए पीपीयू में फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं तो आपको एग्जामिनेशन भी बीसीए पीपीयू फर्स्ट ईयर का ही देना होगा। ऐसा नहीं है कि सेकेंड ईयर का पेपर आपको एग्जामिनेशन हॉल में मिल जाएगा। इसका मतलब कि जिस चीज का प्रोग्राम है वही प्रोग्राम प्रोसेस में बदलेगा, एग्जाम भी उसी का होगा, एग्जामिनेशन का शेड्यूल भी उसी का निकलेगा। ऐसा नहीं कि सेकंड ईयर का शेड्यूल आपको दे दिया जाए और इम्पोज कर दिया जाए, जाइए आप सेकंड ईयर का एग्जाम दे दीजिए। तो जो अवेलेबल आपका प्रोग्राम रिसोर्स होगा उसी अवेलेबल प्रोग्राम को प्रोसेस में परिवर्तन किया जाएगा। तो अब यहाँ पर रोल क्या है, यहाँ पर एक और चीज हम लोग डिस्कस किए थे, स्टोरेज कैपेसिटी और स्पीड क्लियर है। स्पीड क्यों डिक्रीज होता है, रिस्पॉन्स बढ़ जाता है। जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी, डिस्टेंस बढ़ जाएगी, तो रिस्पॉन्स टाइम बढ़ जाएगा। तो रिस्पॉन्स जब बढ़ जाएगा तो ऑब्वियसली है कि स्पीड घट जाएगा। जितना फास्ट स्पीड से रिकॉग्नाइज करेंगे वो नहीं कर पाएंगे, स्लो हो जाएगा। और एक्चुअली कैश मेमोरी को इंट्रोड्यूस करने के पीछे भी यही रीजन है। अर्लियर जो कंप्यूटर यूज होता था वहां पर प्रोसेसर रजिस्टर, सीपीयू के बाद प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी होता था। कैश मेमोरी का कॉन्सेप्ट इसलिए डाला गया क्योंकि प्रोसेसर का स्पीड मेमोरी के स्पीड से बहुत ज्यादा है। तो जो प्रोसेसर रजिस्टर है उसका भी स्पीड ज्यादा है। तो अब जैसे आप कोई इंटरव्यू दे रहे हैं, उस इंटरव्यू में आपको एक के बाद एक 50 सवाल दे दिया गया, तो आप उस 50 सवाल का जवाब में एनालाइज नहीं कर पाएंगे किसको प्रायोरिटी दे, पहले वाले क्वेश्चन को कि 50 नंबर वाले को। इसका मतलब क्या है, जिस स्पीड से क्वेश्चन दिया गया उस स्पीड से आप सबमिट नहीं कर पाए, यानी कि देयर इज अ मिसमैच इन स्पीड ऑफ इंटरव्यूअर एंड इंटरव्यूई। तो दैट इज द सेम रीजन हियर आल्सो, प्राइमरी मेमोरी स्पीड इज स्लोअर देन द स्पीड ऑफ द प्रोसेसर रजिस्टर। तो कंट्रोल सिग्नल अगर प्रोसेसर जनरेट कर रहा है फेच करने के लिए, सर्च करने के लिए, इनिशिएट करने के लिए प्रोसेस, उस स्पीड से प्राइमरी मेमोरी इनिशिएट नहीं कर पाता है। अब इस स्पीड को मैनेज कैसे किया जाए, तो कैश मेमोरी का कॉन्सेप्ट लाया गया कि कोई भी इंफॉर्मेशन कैश मेमोरी से लेगा सीपीयू, न कि प्राइमरी मेमोरी से। इसका मतलब क्या है, प्राइमरी मेमोरी फेच करने के बाद, सर्च करने के बाद इंस्ट्रक्शंस को कहां सबमिट करेगा, कैश मेमोरी को। और सीपीयू जब भी डिमांड करेगा किससे करेगा, कैश मेमोरी से। इससे क्या है, थोड़ा सा प्राइमरी मेमोरी को टाइम मिल गया, समय मिल गया, स्पीड थोड़ा सा मैनेज हो गया। अदरवाइज क्या है, हमारे और इनके बीच में अगर कोई वार्तालाप है, कम्युनिकेशन हो रहा है, तो हम क्वेश्चन पूछेंगे, जवाब देना होगा। लेकिन अब ये कैसे हो गया, हमने क्वेश्चन पूछा इससे, इसने दूसरे से पूछा, तो हम आंसर किससे चाहेंगे, हाँ उससे नहीं चाहेंगे। तो ये क्या हो गया, थोड़ा सा डिले कर दिया गया प्रोसेस को। हाँ 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 बिल्कुल, प्राइमरी सबमिट करता है कैश मेमोरी को। आगे फिर हम लोग जब डिस्कस करेंगे तो हम यहाँ पर कंट्रोलर भी काम करता है, कैश कंट्रोलर। ये जितना भी मेमोरी पढ़ रहा है ना, सबका एक एक कंट्रोलर भी है। जैसे आपके क्लास में सीआर बनेगा तो डायरेक्ट कंट्रोलर,
तो यहाँ पर भी कंट्रोलर है, ठीक है ना। कैश मेमोरी को कंट्रोल करने के लिए कैश कंट्रोलर, मेन मेमोरी को कंट्रोल करने के लिए रैम को मेमोरी कंट्रोलर। आगे जब आप पढ़िएगा तो आपको हिट और मिस का भी कॉन्सेप्ट हम लोग देखेंगे। हिट और मिस, हिट रेशियो आपका अगर मेंटेन है, इसका मतलब है कि मैक्सिमम टाइम आपका जो सीपीयू जब डिमांड कर रहा है इंस्ट्रक्शन, तो इंस्ट्रक्शंस आर अवेलेबल विद द कैश मेमोरी। If the instructions are unavailable with the cache memory, that means somewhere it is available with the primary memory or fetching is not completed right now. तो fetching is in the process. तो अगर प्रोग्रेसिव होगा तो तब तक आपका वो कैश मेमोरी में नहीं आएगा। सबसे पहले तो प्रोसेसर रजिस्टर पे पहुंच जाता है। बिल्कुल। वो नहीं रखता कौन रखता है प्रोसेसर रजिस्टर? प्रोसेसर रजिस्टर आपका जो है इंस्ट्रक्शंस को केवल हैंडल करने के दौरान रखता है। वो जो है लंबे समय तक नहीं रख सकता है, क्योंकि उसका एक कैपेसिटी है। तो जब कोई प्रोसेस आपका सीपीयू में लोकेट होता है, आगे जब ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़िएगा तो वो पढ़िएगा आप, क्योंकि ये आर्किटेक्चर में सब आपका अटैच है। तो जब ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़िएगा तो हर प्रोसेस जो है ना वो वेरियस स्टेट से होकर गुजरता है। तो देयर इज ए न्यू स्टेट, रेडी स्टेट, रनिंग स्टेट, ठीक है ना, वेटिंग स्टेट और फाइनली टर्मिनेशन स्टेट। यानी न्यू स्टेट का मतलब हुआ कोई भी प्रोसेस पहले जन्म लेता है। ये जन्म कैसे लेता है? जब कोई यूजर रिक्वेस्ट देता है। अगर आपको एमएस वर्ड ओपन करना है तो ये रिक्वेस्ट आप देंगे। सिस्टम को नहीं पता है कि आपको वर्ड एक्सेल यूज करना है, एक्सेल यूज करना है, पावर पॉइंट यूज करना है। ये अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट यू जस्ट सेलेक्ट एंड सबमिट योर रिक्वेस्ट टू द कंप्यूटर, and as per your request the particular file is opened for you, and during opening of that file and relocating that file somewhere inside the CPU, सबसे पहले क्या होगा, वो न्यू स्टेट से रेडी स्टेट में जाएगा। अब ये न्यू स्टेट तो आपका कहाँ है? न्यू स्टेट में ये आपका जो रेडी स्टेट है ये मेंटेन करता है प्राइमरी मेमोरी, जिसको आप अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। रनिंग स्टेट इज द पार्ट ऑफ सीपीयू। Waiting state again, it is the part of primary memory, but if the process waiting for long period of time for resources, अगर लंबे समय तक अगर resources को यूज करने लगा तो उस समय सेकेंडरी मेमोरी में वो रिसाइड हो जाता है फिर से रीजनरेट होने के लिए। और टर्मिनेशन इज द एंड ऑफ प्रोसेस, यानी प्रोसेस का एंड होना, प्रोसेस की समाप्ति होना, डीएक्टिवेट होना, है ना। तो जब भी कोई प्रोसेस बनता है रेज किया था, तो जब भी कोई प्रोसेस बनता है तो उसका एक पीसीबी बनता है, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक, जिसको आप बोल सकते हैं टीसीबी ऑल्सो, टास्क कंट्रोल ब्लॉक, जिसको आप टास्क मैनेजर में देखते हैं, ठीक है। तो वो पूरे प्रोसेस का लाइफ टाइम बताता है कि प्रोसेस अभी किस स्टेट में है, रनिंग स्टेट में है, टर्मिनेट हो गया, या वेटिंग स्टेट में है प्रोसेस ड्यू टू सर्टेन रिसोर्सेस। तो कोई भी प्रोसेस आपका इनिशिएट होता है सबसे पहले एक मिनट, फेच, डिकोड, एग्जीक्यूट। बोलिए सर, थोड़ा बैक कर दीजिए, वो स्क्रीनशॉट ले लेंगे। एक मिनट, एग्जीक्यूट। ये क्लियर है ना? स्टोरेज कैपेसिटी इंक्रीज क्यों होता है, स्पीड क्यों घटता है, क्लियर है? हाँ, वर्किंग मेमोरी में हम प्राइमरी मेमोरी को रखते हैं। हाँ, प्राइमरी मेमोरी बोल दीजिए तो कैश मेमोरी, बिना प्राइमरी मेमोरी के कैश मेमोरी का रोल नहीं है।
तो प्राइमरी मेमोरी को वर्किंग रखा जाएगा। जब वन न्यूमैन आर्किटेक्चर डिस्कस करेंगे तो उसमें इसको हम लोग फिर से डिस्कस करेंगे। जस्ट आई गिव यू टुडे, आई गिव यू द ओवरव्यू ऑफ द पर्टिकुलर, एंड फ्रॉम नेक्स्ट क्लास आई जस्ट इनिशिएट द सीक्वेंशियल एक्सेशन। तो यहाँ पर I will share the PDF file of this in your group, ठीक है ना? Today, if not today, then tomorrow, ठीक है ना? But I will try to send it today, ठीक है ना? तो अब देखिए fetch, decode और execute, ये entire system इसी तीन पॉइंट पर काम करता है। फेच का काम आपका प्राइमरी मेमोरी का है, यानी अगर आपको कुछ सवाल दिया जाएगा तो आप अपने प्राइमरी मेमोरी को स्ट्रेस देते हैं, जवाब खोजते हैं, ठीक है ना? अब आपका प्राइमरी मेमोरी हो सकता है कि कुछ डेटा आपके माइंड में हो, प्राइमरी मेमोरी पहले से अवेलेबल हो, उसके बेसिस पर जवाब दे दे, या फिर वो आपका कॉपी और असिस्टेंस देखना लगेगा हार्ड डिस्क कि इस कॉपी में होगा इसका आंसर, या गूगल सर्च इंजन का यूज करना शुरू कर देगा। ये सब इनिशिएट प्राइमरी मेमोरी कर रहा है, डेटा को, इंस्ट्रक्शंस को खोजने का। तो फेच यानी कि कंप्यूटर में कुछ भी आप रिक्वेस्ट देते हैं तो उसके लिए फेच होना होता है, यानी फेचिंग इनिशिएट होता है। अब फेच आपका ऑफलाइन भी होगा, ऑनलाइन भी होगा। हाँ, ऑफलाइन क्या हो जाएगा? ऑफलाइन हो गया कि अगर हार्ड डिस्क से आप फेच कर रहे हैं। ऑनलाइन क्या हो गया कि अगर किसी सर्वर से आप किसी पर्टिकुलर फाइल को डाउनलोड करना चाह रहे हैं या ओपन करना चाह रहे हैं व्यू मोड में, तो उस केस में क्या है? स्पीड ऑफ नेटवर्क, सर्वर अवेलेबिलिटी, यूआरएल, जो रिसोर्स आप टाइप कर रहे हैं वो अवेलेबल होना चाहिए। फिर वहां से जाकर डाउनलोड या ओपन का कोई भी परमिशन आप व्यू कर देंगे। ऑब्वियसली सेकेंडरी मेमोरी, पेन ड्राइव, सीडी, डीवीडी, जो भी जहां भी डेटा परमानेंटली रिसाइड करके रखे हैं, जिसको एक्सेस करने के लिए आप इंसर्ट करेंगे या डायरेक्टली हार्ड डिस्क से ओपन करेंगे, ठीक है ना? कोई फाइल आप पेन ड्राइव में रखें तो पेन ड्राइव से एक्सेस करेंगे ना, तो ऑफलाइन मोड में ही आपका वो आपका यूज हो रहा है, लेकिन डिस्कनेक्टेड है। सेकेंडरी मेमोरी का मतलब ही हो गया स्टोरेज डिवाइसेस। लेकिन जैसे आपका स्टैंडर्ड इनपुट, स्टैंडर्ड आउटपुट बात करते हैं, तो इनपुट तो केवल कीबोर्ड नहीं है, इनपुट इज माउस आल्सो, योर मॉनिटर इज नॉट a standard only output, your printer is also output device, but a standard output device is the monitor, because you want to view the contents over there। तो आपको देखना होता है तो मॉनिटर देखते हैं। हाँ, उसका सॉफ्टवेयर यानी हार्ड कॉपी निकालना है तो प्रिंटर का जरूरत है, तो प्रिंटर आपका सपोर्टिव असिस्टेंस प्रोवाइड करता है। whenever there is need to take the printout of the content, then only you can use the particular printer, otherwise there is no need of printer, ठीक है ना? इससे उसी तरह से माउस का जब जरूरत होता है माउस यूज करते हैं। सेकेंडरी मेमोरी आप बोल सकते हैं, सेकेंडरी मेमोरी के अंदर आपका हार्ड डिस्क स्टैंडर्ड यूज हो रहा है जो इंटरनल टू कंप्यूटर है। यू कैन ऑल्सो यूज इंटरनल और एक्सटर्नल टू कंप्यूटर हार्ड डिस्क, ठीक है ना, टू एक्सेस। यू कैन से स्टोरेज डिवाइसेस कम्स अंडर सेकेंडरी मेमोरी। ऑल आर सेकेंडरी मेमोरी, नॉट अ प्राइमरी मेमोरी। Yes, that is the secondary memory। नाम ही है सेकेंडरी मेमोरी। आप यहाँ बैठे हैं, आपको बैग की क्यों जरूरत है? आप मोबाइल रखे हैं, मोबाइल में कॉन्टेक्ट्स का क्या जरूरत है? क्योंकि सारे कॉन्टेक्ट्स को आपने प्राइमरी मेमोरी में नहीं रख सकते, ठीक है ना? गूगल ड्राइव पर चाहे कहीं पर रखते हैं ना, क्यों रखते हैं? इसलिए रखते हैं कि फ्यूचर एक्सेशन के, आप डायरेक्ट मोबाइल पर नंबर टाइप नहीं कर सकते हैं, तो बाय नेम उसको कॉल करिएगा। तो बाय नेम आप सर्च करेंगे। अगेन व्हेनेवर यू हैव टू कॉल एनीवन, कुछ नंबर आपको याद रहता होगा, टाइप करते होंगे, अदरवाइज यू आर डूइंग द फेचिंग ऑप्शन। आप फेच करते हैं कि ये नंबर कहाँ है, फेच करने के बाद डिकोड करते हैं। अगर इस नाम का 3 लोग हैं तो कौन वाला, अब एक ही आदमी का 3 नंबर है तो क्या करते हैं? डिकोड करते हैं, इसमें से कौन सा नंबर लगाना है, कौन नहीं लगाना है, और जब फाइनलाइज कर देते हैं तो कॉल कर लेते हैं। तो फेच, डिकोड, एग्जीक्यूट तो आप रियल लाइफ में भी करते हैं, बिना इसके कुछ हो ही नहीं सकता। तो कंप्यूटर इज मैन मेड मशीन। तो ये मैन मेड मशीन है, तो कंप्यूटर में भी वो सारी चीजें होती हैं जो कंप्यूटर, जो एक आदमी अपने रियल लाइफ में करता है, ठीक है ना? ये केवल एक फीलिंग छोड़कर बाकी सब चीज।
एवरीथिंग कंप्यूटर कैन डू फॉर यू एंड फास्टेस्ट मैनर में कर सकता है। तो ये प्राइमरी मेमोरी का काम क्या है? फेच करना। कंप्यूटर के अंदर जो प्राइमरी मेमोरी है उसका काम है सर्च करना। ये सर्च कब करेगा? जब इसको आप काम देंगे, जब आप रिक्वेस्ट देंगे ओएस सीपीयू तक इन्फॉर्म करेगा, कंट्रोल सिग्नल जनरेट होगा, फेचिंग इनिशिएट होगा, फेच होने का काम शुरू होगा, मिलेगा, आगे प्रक्रिया होगा। डिकोड कौन करेगा? कंट्रोल यूनिट। एग्जीक्यूट कौन करेगा? एएलयू, एफपीयू, ठीक है ना, ये सारे सेक्शन, रजिस्टर्स। ये सबको इसलिए लिखा गया क्योंकि फाइल हैंडलिंग में आप किसी तरह का कंप्यूटेशनल जॉब नहीं करते हैं। आप किसी फाइल को ओपन किए, उसमें लिख रहे हैं, उसमें कोई मैनिपुलेशन तो कर नहीं रहे हैं, कोई कंप्यूटेशनल जॉब नहीं हो रहा है, तो रजिस्टर हैंडलिंग होता है। यानी आपके फाइल का एड्रेस कहीं होगा, टेम्पोररी स्टोर, और उसका डेटा जो आप अपडेट कर रहे हो वो किसी डेटा रजिस्टर में, यानी रजिस्टर एप्लीकेशन होगा उस फाइल पर। जब तक आप फाइल ओपन करके रखे हैं, क्लोज नहीं करते हैं। लेकिन अगर कोई कंप्यूटेशनल जॉब है तो वो कंप्यूटेशनल जॉब आपका दो तरह का हो सकता है, या तो इंटीग्रल होगा, ठीक है ना, या तो आपका फ्लोटिंग पॉइंट होगा। इंटीग्रल का मतलब हुआ जिसमें डेसिमल नहीं हो, इंटीग्रल ऑपरेशन हो। तो एएलयू आपका जो है केवल इंटीग्रल ऑपरेशन परफॉर्म करता है, जो एडिशन सब्ट्रैक्शन। हाँ, एएलयू का एग्जांपल जैसे जितना भी आपका ऑपरेशन है, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट इसको कहा जाता है। अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट का मतलब ऑल अर्थमेटिकल ऑपरेशन एंड लॉजिकल ऑपरेशन। लॉजिकल में जैसे लॉजिकल और, लॉजिकल एक्सॉर, लॉजिकल नॉट, ठीक है ना, लॉजिकल एंड, कॉम्प्लीमेंट। हाँ, ट्रू फॉल्स यू कैन से दैट इज द कॉम्प्लीमेंट्री। तो फ्लोटिंग पॉइंट में क्या है? जैसे अगर कोई वैल्यू आप लिख रहे हैं 3.94 और यहाँ लिख रहे हैं 394, तो 394 यानी 394 इज द इंटीग्रल एंड 3.94 इज द फ्लोटिंग पॉइंट, बिकॉज सम डेसिमल यानी फ्रैक्शनल पार्ट इज आल्सो देयर। तो इंटीग्रल पार्ट, फ्रैक्शनल पार्ट। तो अब इस केस में फ्लोटिंग पॉइंट एक एडिशनल मैथ को प्रोसेसर कंप्यूटर में यूज किया जाता है। मैथ को प्रोसेसर इज यूज्ड क्योंकि आपका जो एएलयू है वो ट्रिग्नोमेट्रिकल, एक्सपोनेंशियल या लॉगरिथमिक फंक्शन जिसमें डेसिमल यूज होता है, फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू, उसको भी हैंडल नहीं कर सकता है। तो उसके लिए लॉगरिथमिक, ट्रिग्नोमेट्रिकल या जिसमें भी फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन होना है, उसके लिए एफपीयू आपका एक एडिशनल मैथ को प्रोसेसर सिस्टम में अवेलेबल होता है। तो दैट इज द पर्टिकुलर। तो एफडीई में यहाँ पर कंप्यूटर में प्राइमरी मेमोरी का काम फेचिंग का है, डिकोडिंग का काम आपका सीपीयू के अंदर कंट्रोल यूनिट डिकोडिंग का काम करता है। डिकोडिंग का मतलब होता है डिसीजन मेकिंग, कि आपका जो इंस्ट्रक्शन या डेटा है उस पर क्या काम करना है, उसको कैसे एग्जीक्यूट कराना है, रजिस्टर बेस्ड ऑपरेशन होगा या एएलयू या एफपीयू में भेजना होगा। एक बार जब ये डिसीजन हो जाता है तो एएलयू में जाता है या एफपीयू में जाता है या किसी रजिस्टर में उसका एड्रेस और डेटा एलोकेट होता है, उस पर फिर आप काम करना शुरू करते हैं। और ये तब तक आपका एलोकेटेड रहता है, इसलिए टेम्पोररी कहा गया है क्योंकि जब तक आप उसको ओपन करके रखते हैं, जब क्लोज कर देंगे, जैसे ही क्लोज बटन क्लिक किया फाइल क्लोज हो गया। हाँ, प्रोसेस एंड हो गया। फाइल क्लोज करने का मतलब प्रोसेस एंड, उसका पीसीबी डीएक्टिवेट हो जाएगा। जैसे ही प्रोसेस क्रिएट होता है, एक पीसीबी प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक क्रिएट होता है जो उस प्रोसेस का पूरा स्टेट मेंशन करता है, यानी वो प्रोसेस कब न्यू स्टेट से रेडी स्टेट में आया, कब रेडी से रनिंग स्टेट में गया, रनिंग में कोई रिसोर्स इनकम्प्लीटनेस के चलते कब वो वेटिंग स्टेट में चला गया। कोई जरूरी नहीं कि हर प्रोसेस वेटिंग स्टेट में जाए, लेकिन ऐसा हो सकता है कि आप किसी पर्टिकुलर फाइल को प्रिंट कमांड दें और पहले से कोई प्रिंट कमांड उस प्रिंटर को दिया गया हो, तो आप जब प्रिंट कमांड देंगे तो आपके प्रिंट कमांड को नहीं लेगा सिस्टम। कब तक नहीं लेगा? जब तक कि पहले वाला प्रिंट नहीं कंप्लीट हो जाता है। इसका मतलब है कि जब आपने प्रिंट जनरेट किया तो आपका प्रिंटिंग इंटरप्ट हो गया। हाँ, ओवरलोड नहीं, वो इंस्टेंसेस। अब आपके पास एक ही प्रिंटर है तो उसी प्रिंटर को आप कमांड दिए होंगे, तो जब आप इसको डेडलॉक को बचा कैसे सकते हैं? जब आप इंस्टेंसेस बढ़ा देंगे, यानी कि इन प्लेस ऑफ वन प्रिंटर यू जस्ट इंस्टॉल 2 प्रिंटर, तो साइमल्टेनियसली आप दोनों प्रिंटर को कमांड दे सकते हैं। तो यहाँ पर इंस्टेंस प्ले इंपॉर्टेंट रोल।
तो ठीक है ना, आप जब इंस्टेंसेस को इन्हांस करेंगे तो डेडलॉक कम होगा, कम इंस्टेंस होगा डेडलॉक ज्यादा होगा। जैसे अभी सिंपली समझ लो, यहां से अगर तुमको स्टेशन जाने का एक ही रास्ता है, एक ही इंस्टेंस है, वो ट्रैफिक जाम हो गया, डेडलॉक हो जाएगा। लेकिन अगर यहां से तुमको स्टेशन जाना है, इसका 4-5 रास्ता है, एक जाम होगा, दूसरा ऑप्शन है, दूसरा होगा, तीसरा ऑप्शन है, चौथा होगा, पांचवा ऑप्शन है, पांचों जाम हो जाएगा तभी डेडलॉक होगा। तो ऐसा बहुत रेयरली होगा कि पांचों जाम हो जाए। तो ये क्या हुआ, अब इसमें भी है, ये 5 रास्ते में से आप अगर सारे ट्रैफिक ओके हैं, प्रीफर किसको करते हैं, शॉर्टेस्ट पाथ। तो नेटवर्किंग में भी वही चीज है, आप राउटर लगाते हैं तो वहां पर भी शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम ही काम करता है। हाँ, हॉट स्पॉट यूज करते हैं, दूरी बढ़ेगा स्पीड घट जाएगा, कनेक्शन आपका भी लॉस हो सकता है। तो दैट इज द रेंज इन विच यू हैव टू एक्सेस द पर्टिकुलर नेटवर्क। तो उसी रेंज के अंदर आप यूज करते हैं। तो इंटायर आपका जो स्ट्रेटजी इनसाइड द कंप्यूटर वो फेच, डिकोड और एग्जीक्यूट के बेसिस पर ही है। जैसे रियल लाइफ सिचुएशन हैंडलिंग करते हैं, वैसे ही कंप्यूटर में भी बैठेंगे, रिक्वेस्ट देंगे, फेच इनिशिएट हो जाएगा, ओपन होने के तक डिकोडिंग हो रहा होगा, जब ओपन हो जाएगा तो डिकोडिंग हो गया है। सीपीयू के अंदर एक कंट्रोल यूनिट, आगे डिस्कस करेंगे। बोला जाता है कि सीपीयू करता है, बट सीपीयू इज द नेम, सीपीयू कहीं एग्जिस्ट नहीं करता है, सीपीयू बॉडी नेम है। जैसे आप बोलेंगे अगर बिहार कहीं एग्जिस्ट करता है, पटना एग्जिस्ट करता है कैपिटल, न्यू दिल्ली एग्जिस्ट करता है, इंडिया एग्जिस्ट करता है कहीं, दिखता है कहीं कोई जगह है? इंडिया इज द नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सीपीयू इज द नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बट एक्चुअल कंपोनेंट इसका क्या है, सीयू। तो जो बोलते हैं सीपीयू इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, बट एक्चुअल सीयू इज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। योर कंट्रोल यूनिट इनसाइड द पर्टिकुलर सीपीयू इज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, बिकॉज इट रियली टेक्स द डिसीजन, वो डिसीजन लेता है। एक्चुअली डिसीजन इज टेकन बाय द पर्टिकुलर कंट्रोल यूनिट, not by the CPU. Yes, CU, ALU, FPU, registers, all are the component of the CPU. ये सारे कंपोनेंट ही हैं जो CPU के लिए काम करते हैं, ठीक है ना। अब यही जब माइक्रो प्रोसेसर टू माइक्रो प्रोसेसर आप जाएंगे तो ये आर्किटेक्चर चेंज होगा, ठीक है ना। और उसी आर्किटेक्चरल चेंजिंग के चलते स्पीड भी बढ़ता है, प्रोसेसर का स्पीड बढ़ने का भी रीजन वो आर्किटेक्चरल चेंजिंग है। So fetch, decode, execute, that is the second important point we have to discuss. And here कोई भी, ये आप ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ेंगे, प्रोसेस मैनेजमेंट टॉपिक में ये पूरा डिटेल में पढ़ेंगे आप, ठीक है। तो फैमिली ऑफ इंटेल माइक्रो प्रोसेसर, फैमिली ऑफ इंटेल माइक्रो प्रोसेसर में वी डिस्कस अबाउट the microprocessor on the basis of a specific categorization. तो अभी आप माइक्रो प्रोसेसर आप जाते हैं मार्केट में, तो what do you think? हेलो, हाँ बोलिए। हम लोग जो डिस्कस करेंगे इंटेल या फैमिली को, उसमें कैटेगराइजेशन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर का बेसिस क्या होगा, साइज, साइज और स्पेसिफिकेशन। एक कैटेगरी होता है आपका एप्लीकेशन, तीसरा होता है आर्किटेक्चर या हार्डवेयर, ठीक है। अब ये जो साइज एंड स्पेसिफिकेशन है, जब आप जाते हैं कंप्यूटर तो आप बोलते हैं 4 बिट कंप्यूटर, 8 बिट कंप्यूटर, 16 बिट कंप्यूटर, 32 बिट, 64, 128 बिट कंप्यूटर। ये ऑन द बेसिस ऑफ साइज एंड स्पेसिफिकेशन, बिकॉज आपका जो ये बिट आप जो है, ये आपका वर्ड लेंथ इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर में स्मॉलेस्ट मेजरमेंट यूनिट बिट है। तो साइज और स्पेसिफिकेशन के बेसिस पर हम लोग बिट ओरिएंटेशन करते हैं, जैसे 4 बिट, 8 बिट, 16 बिट, 32 बिट,
64 bit, nowadays 32, 128 bit also there. 256 bit. हाँ, ये होता है जैसे आप कैलकुलेटर 8 डिजिट का यूज करते हैं, इसका मतलब क्या, 8 डिजिट तक का कैलकुलेशन उससे किया जा सकता है। तो यहाँ 4 बिट या 8 बिट का मतलब क्या है, एक समय में, एक इंस्ट्रक्शन साइकिल में 4 बिट का डेटा एक्सेस आप कर सकते हैं, 8 बिट का डेटा एक्सेस कर सकते हैं। आगे जब आप किसी लैंग्वेज को पढ़ेंगे तो उसमें ये ओरिएंटेशन आपका होगा कि आपका कोई भी डेटा टाइप जो है उसका रेंज इसके बेसिस पर तय होता है, जहां पर n क्या है, n इज नंबर ऑफ बिट। ठीक है, तो कोई भी लैंग्वेज में, क्योंकि आप डेटा हैंडल करना, आपको इंस्ट्रक्शंस में डेटा होता है, तो अगर आप इंटीजर डेटा की बात करेंगे तो इंटीजर का नॉर्मली हम लोग जो है 16 बिट कंप्यूटर अगर बात कर रहे हैं, आर्किटेक्चर पर आपका डिपेंड करता है। आगे आप जब देखेंगे कि दो तरह का आर्किटेक्चर, आप जब देव C++ या कोई आईडी यूज करेंगे 32 बिट कंप्यूटर आर्किटेक्चर फॉलो करता है। टर्बो C कंपाइलर यूज करेंगे वो 16 बिट आर्किटेक्चर को फॉलो करता है। तो टर्बो C का जो इंटीजर का साइज होगा वो 2 बाइट का होगा, 16 बिट है, और वो आईडी जिसमें आप उसको रन कर रहे हैं वो 32 बिट आर्किटेक्चर को फॉलो कर रहा है, तो उसमें उसी इंटीजर का साइज 4 बाइट होगा। हाँ, एक बाइट में 8 बिट होता है, 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट। तो इंटीजर का साइज 16 बिट। हाँ, 16 बिट आर्किटेक्चर में अगर आपका वो इन्वायरमेंट में वर्क हो रहा है तो इंटीजर का साइज क्या हो जाएगा, 2 बाइट, दैट मीन्स दैट इज 16 बिट। तो इसका रेंज क्या हो जाएगा, रेंज ऑफ इंटीजर क्या हो जाएगा, इसमें आप फॉर्मुलेट कर दीजिए, n का वैल्यू आपका यहाँ पर 16 है, तो रेंज क्या हो जाएगा, -2 to the power 16 -1 -1, that is -2 to the power 15 to 2 to the power 15 -1, जो अप्रोक्सीमेटली आपका हो जाता है -32768 to 32767। हाँ सर, 40%। हाँ, ईच पेपर मतलब 40% चाहिए। नहीं, हर पेपर में पास होना जरूरी है। ठीक। तो अब इसी तरह से अगर आप कैरेक्टर की बात करेंगे, अभी हम लोग बात कर रहे हैं 16 बिट आर्किटेक्चर में, अब यही चीज अगर 32 बिट आर्किटेक्चर में बात करेंगे तो ये आपका इंटीजर 4 बाइट हो जाएगा। तो 4 बाइट होगा तो इसका रेंज क्या हो जाएगा, -2 to the power 31 to 2 to the power 31 -1। इसलिए आप जब साइज इंटीजर का प्रिंट करेंगे आईडी 32 बिट आर्किटेक्चर में तो 4 बाइट प्रिंट होगा, और अगर 16 बिट आर्किटेक्चर में प्रिंट करेंगे तो 2 बाइट। तो वहां कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ 2 है वहां 4 क्यों है, उसी C लैंग्वेज का प्रोग्राम C++ का यहाँ 2 बाइट बता रहा है, वहां पर 4 बाइट क्यों बता रहा है, बिकॉज आर्किटेक्चरल सपोर्ट उसको 32 बिट का मिल रहा है और उसको 16 बिट का मिल रहा है। तो कैरेक्टर का साइज 1 बाइट होता है, यानी 8 बिट। तो इसका मतलब इसका रेंज कितना होना चाहिए, रेंज ऑफ कैरेक्टर, तो रेंज ऑफ कैरेक्टर -2 to the power 8 -1 to 2 to the power 8 -1 -1, that is what, -2 to the power 7 to 2 to the power 7 -1, that is -128 to 127. This is the range of character. So you can find out the range of any data type on the basis of architecture. तो अगर 16 बिट आर्किटेक्चर है उसके हिसाब से रेंज ऐसे निकालेंगे, फॉर्मूलेट इसी से करेंगे, 16 बिट के लिए भी, 32 बिट के लिए भी, 64 बिट के लिए भी, 128 बिट के लिए भी। तो दैट इज द कैटेगराइजेशन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर ऑन द बेसिस ऑफ साइज और स्पेसिफिकेशन। अंडर एप्लीकेशन, ठीक है ना, अंडर एप्लीकेशन वी हैव माइक्रो कंट्रोलर,
माइक्रो कंट्रोलर में जितना भी एम्बेडेड सिस्टम आपका आता है, जितना भी रिमोट कंट्रोल आप वॉशिंग मशीन, एसी, ये सब जो जहाँ चिप लगा रहता है, all comes under microcontroller. That is the categorization on the basis of application. There is general purpose GPM, general purpose microprocessor also, and a special purpose microprocessor also. General purpose microprocessor and a special purpose microprocessor. And now the third one is the architecture. इसको भी हम लोग पढ़ना है. So you just know the name of CISC, RISC, superscalar, VLIW, EPIC. Nowadays EPIC comes. यानी कि हाँ बता रहा है. इंटेल ने ज्यादातर CISC ओरिएंटेड माइक्रोप्रोसेसर बनाया, कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर. ठीक है ना. Complex instruction set computer is used for multiple tasks. ये multiple task support करता है, provide. RISC is unitask supporter. Uniform task यानी कि कोई specific job को अगर करना है तो RISC processor. Superscalar processor is there. Very large instruction word processor is there. EPIC is the combination of CISC and RISC. Nowadays जो भी system आ रहा है उसमें माइक्रो इंस्ट्रक्शंस को लिखा जा रहा है रिस्क बेस्ड. ठीक है ना. तो दीज आर ऑन द बेसिस ऑफ आर्किटेक्चर. तो आप जो लैपटॉप या डेस्कटॉप परचेज करेंगे वो CISC बेस्ड होना चाहिए, क्योंकि आप कोई एक स्पेसिफिक एप्लीकेशन एक्सेस नहीं करेंगे. आप चाहेंगे उस पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन यूज करना. आपसे बोल दिया जाए खाली वेदर फोरकास्टिंग होगा इसमें, यू डोंट गो टू परचेज दैट लैपटॉप और डेस्कटॉप. यस बोलो सर. व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CISC? Okay, we just discuss in details. CISC stands for complex instruction set computer. ये पूरा डिटेल में पढ़ना है. ठीक है ना. I just give you the overview today. Earlier I say that I do not miss it. Obviously. तो माइक्रोप्रोसेसर पढ़ना क्या है, यही ना पढ़ना है. कुछ बाउंस अभी तो कुछ बताइए, आपको अभी ओवरव्यू दे रहे हैं. बाउंस कुछ नहीं जाता है. इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर. ठीक है ना. सुपर स्केलर का कोई फुल फॉर्म नहीं है. वेरी लार्ज एंड समटाइम लॉन्ग ऑल्सो. Very large or long instruction word, and EPIC is explicit parallel instruction computing. ठीक है ना. एक्सप्लिसिट में आपका CISC और RISC दोनों कंबाइंडली यूज होगा. ठीक है. तो दिस इज द कैटेगराइजेशन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर. So when we discuss the family of microprocessor, we just discuss the Intel family on the basis of size और specification. जैसे Intel ने 4 बिट का कौन कौन सा कंप्यूटर बनाया, 8 बिट का कौन कौन सा कंप्यूटर बनाया. तो I just share you one PDF which consists of evolution of Intel microprocessor. You just go through that before discussion. हम लोग डिस्कस करेंगे उसके पहले. उसमें कुछ पॉइंट्स होगा, जैसे ईयर ऑफ इन्वेंशन, क्लॉक स्पीड, कितने स्पीड का था वो. ठीक है ना. उसके बाद बिट ओरिएंटेशन, यानी कितने बिट, वर्ड लेंथ क्या था उस कंप्यूटर का, 8 बिट, 4 बिट, 16 बिट. और मैकेनिज्म यानी टेक्नोलॉजी क्या यूज किया गया. ठीक है ना. तो आप फर्स्ट फंडामेंटल में पढ़ेंगे तो उसमें भी टेक्नोलॉजी पढ़ेंगे. तो टेक्नोलॉजी इन द सेंस कि फर्स्ट जनरेशन में कौन सा टेक्नोलॉजी यूज हुआ, सेकंड में कौन सा टेक्नोलॉजी यूज हुआ, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ. माइक्रो प्रोसेसर बाद में आया. सबसे पहले क्या था, वैक्यूम ट्यूब. उसके बाद ट्रांजिस्टर. फिर ट्रांजिस्टर का इंटीग्रेशन हुआ, आईसी. फिर आईसी को और ज्यादा क्लोज किया गया, लार्ज स्केल. फिर वेरी लार्ज स्केल. फिर अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन किया गया. धीरे धीरे ये सारे टेक्नोलॉजी को यूज किया गया स्पीड को बढ़ाने के लिए.
ठीक है ना, कैसे काम करता है। आप करता नहीं है, करता था फर्स्ट जनरेशन में, ठीक है ना, बताएंगे कैसे काम करता था। तो नेक्स्ट क्लास में भेज देंगे डेफिनेटली। मतलब नहीं भेजते क्या उसमें ब्रिज में? अच्छा ठीक है, भेज देंगे। हाँ बोलिए, क्या बोल रहे हैं? सर ये बोल रहे थे सर कि ये इसका सर अलग से कॉपी बनाना पड़ेगा ना? हाँ बिल्कुल। सर ये सारा नोट्स अभी सर आप पीडीएफ में भेजेंगे ना? हाँ ग्रुप में डालेंगे, और आई सजेस्ट ईच एंड एवरी स्टूडेंट टू मेक अ सेपरेट नोट्स फॉर ईच एंड एवरी पेपर। डोंट मेक अ मिक्स भेज, ठीक है ना। सर इसका प्रैक्टिकल भी होगा ना मिक्स सर? वेजिटेबल नहीं बनाना है, यानी एक ही कॉपी नहीं बनाना है। जस्ट अरेंज अ सेपरेट कॉपी और नोट्स फॉर ईच एंड एवरी पेपर, because it is you are benefited at the time of examination, ठीक है ना, if you are using a separate copy for each subject। कॉपी सर सबका इसका बनाना होगा। आप क्या बोल रहे हैं, बोलिए। प्रैक्टिकल कब से होगा सर? प्रैक्टिकल आप कॉलेज में आइए, प्रैक्टिकल होगा। प्रैक्टिकल होगा सर। सर ये बोल रहे थे सर, बोलिए। हेलो हाँ बोलिए। सर, सभी चैप्टर का अलग अलग बनाना पड़ेगा कॉपी में? हाँ बनाना तो चाहिए अलग अलग। सर जैसे अभी हम लोग को लैपटॉप वगैरह